So students, in the last video we did the Ohm's law till Ohm's law and Nernst equation, and now moving ahead with equivalent conductance lambda eq. It is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving one equivalent of an electrolyte in the solution of volume V centimeter cube contained between two electrodes separated by 1 centimeter cube 1 centimeter having area of cross section enough to hold the whole of the volume of the solution. इसमें ऐसा कुछ नहीं है, only definition is sufficient and formula is lambda eq is equals to k into v and volume को अगर हम चेंज करें concentration में तो अपॉन c हो जाएगा and ये 1000 जो है that is your conversion term है 1000 where c is number of equivalent of the electrolyte present in solution. And next is molar conductance, that is just similar to equivalent conductance. lambda m से denote करते हैं इसको, वो lambda eq था, this is lambda m. It is defined as the conducting power of all the ions produced by dissolving 1 mole आएगा यहाँ पर, that is only difference, बाकी पूरी definition same है. But molar conductance है, that means 1 mole of an electrolyte. ठीक है, and formula is same again, k into v, k into 1000 upon m, m का मतलब concentration molarity में ले रखी है. And what is k over here? K is specific conductance or conductivity and m is your concentration in molarity and lambda m is molar conductance. Now when concentration approaches zero, lambda m is known as a limiting molar conductance. Very very important. लैम्डा नॉट m बोलेंगे, यहाँ पर नॉट का मतलब स्टैंडर्ड नहीं है, नहीं तो हर जगह जब भी हम यूज़ करते हैं नॉट डैट मीन्स वो स्टैंडर्ड इंडिकेट करता है, तो यहाँ पर ये स्टैंडर्ड नहीं है. दिस इज योर लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस. लिमिटिंग का मतलब उसकी एक लिमिट रीच हो गई है, दैट मीन्स जब उसकी कॉन्सेंट्रेशन अप्रोचेज ज़ीरो तो इट इज़ लैम्डा नॉट m. नाउ व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लैम्डा नॉट m, वो यहीं से निकालेंगे फॉर्मूले से, कप्पा इंटू योर कप्पा डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन. तो कप्पा इज सीमेन पर मीटर अपॉन मोल्स पर मीटर क्यूब, तो आंसर आया सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल. तो दिस इज द यूनिट ऑफ लैम्डा m. Moving ahead, now we will do variation of molar conductance or equivalent conductance with dilution. That means अगर हम dilute कर रहे हैं solution को तो उसका effect lambda m पे क्या पड़ेगा? What will be the effect of dilution on lambda m? Now the specific conductance का मतलब यह है तुम्हारा कप्पा. The specific conductance of solution decreases with increase in dilution. That is, it decreases with the decrease in concentration or increase in dilution. अब ऐसा क्यों होता है? Because as per the definition, since it is the conductance of ions in 1 centimeter cube volume of the solution, the number of ions of the electrolyte per centimeter cube will decrease with the increase in dilution. Whereas molar or equivalent conductance will increase, ulta effect है, increase with the increase in dilution or decrease in concentration. Why? Because the large increase in the volume compensates for the decrease in specific conductance. Clear? See, इसमें क्या है कि अगर हम कप्पा की बात करें, कप्पा इज योर स्पेसिफिक कंडक्टेंस, उसकी डेफिनेशन में ये था कि इट इज़ अ कंडक्टेंस ऑफ आयॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब. मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब अगर वॉल्यूम ले लिया उसमें कितने आयॉन्स रहेंगे. सपोज ये वॉल्यूम इतना है 1 सेंटीमीटर क्यूब, ये तुमने टोटल वॉल्यूम लिया, इसका हमने 1 यूनिट वॉल्यूम ले लिया. दिस इज़ 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. सपोज इसमें अभी 4 आयॉन्स आ रहे हैं, 4 आयॉन्स इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम. अब हमने इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया. अब डाइल्यूट करने पे क्या होगा, टोटल वॉल्यूम बढ़ गया तुम्हारा इतना. अब ये सारे पार्टिकल्स स्कैटर हो जाएंगे दूर दूर. अब जो है, अब इतने ही वॉल्यूम में हाउ मेनी 4 आयॉन्स तो नहीं आएंगे जो पहले थे. नाउ व्हाई? बिकॉज डाइल्यूट कर दिया एंड पार्टिकल्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर. तो अब जहाँ पहले 4 थे, अब उतने ही वॉल्यूम में 2 आएंगे. डैट मीन्स नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं. नंबर ऑफ आयंस कम हो रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी भी कम होगी. डैट मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा की वैल्यू विल डिक्रीज विद डाइल्यूशन. अब लैम्डा एम उल्टा इफेक्ट होता है. लैम्डा एम इंक्रीज हो रहा है. क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि कप्पा तो डिक्रीज हो रहा है, बट एट द सेम टाइम वॉल्यूम तो सोल्यूशन का बढ़ रहा है.
नेट रिजल्ट तुम्हारा है इंक्रीज इन लैम्डा एम बिकॉज वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ रहा है. दैट मीन्स व्हाट वी विल राइट कि डिक्रीज इन कप्पा इज कॉम्पेंसेटेड बाय द इंक्रीज इन वॉल्यूम एंड नेट रिजल्ट है लैम्डा एम जो है वो इंक्रीज हो रहा है विद डाइल्यूशन. क्लियर? एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज आस्क्ड कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन कप्पा एंड लैम्डा एम. दोनों का अपोजिट इफेक्ट होता है. इज दिस क्लियर? Now we will do variation of equivalent conductance of strong electrolyte with concentration. अभी तो we have done कि lambda m की value increase होती है with dilution. Now we will go a little more deeper कि अगर हम लेते हैं strong electrolyte और weak electrolyte तो उसमें कैसे effect पड़ता है dilution का lambda m पे. Lambda m तो increase ही होगा in both the cases. Whether you take strong electrolyte or weak electrolyte, it is going to increase with dilution. Now लेकिन उसका ट्रेंड जो है वो दोनों में अलग अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल सी लैम्डा एम इंक्रीज स्लोली विद डाइल्यूशन ओबेइंग द फॉलोइंग इक्वेशन. दिस इज डाइल्यूशन. लैम्डा एम इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए रूट सी वेयर लैम्डा एम इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, लैम्डा नॉट एम इज इक्विवेलेंट कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ए इज द कांस्टेंट एक्सपेरिमेंटली डिटरमिन्ड एंड सी इज द कॉन्सेंट्रेशन टर्म. राइट? अब इसमें से the value of A for a given solvent and the temperature depends upon the type and electrolyte. That is the charge on the cation and anion produced in the dissociation of the electrolyte. Now you see NaCl is 1:1 electrolyte. Why 1:1? Because 1 sodium plus and 1 chloride. Number of ratio of anion cation same है. Charge. Calcium chloride 2:1. Why? Because calcium का charge 2 plus है और chloride का -1. Magnesium 2 plus sulfate 2, तो 2:2, that means 1:1 हो गया electrolyte. Now for strong electrolyte, now this is very very important. अगर हम strong electrolyte की बात करते हैं तो lambda m increases with the increase in dilution. That is तो there वो lambda m तो increase होगा ही होगा, but this is important, but the increase is not very large because strong electrolyte dissociate completely in solution. वो धीरे धीरे increase करेगा, एकदम से increase नहीं करेगा. Not large matlab it will increase gradually. At higher concentration, interionic attraction is present which decreases the increase in dilution. Hence, there is a small increase in lambda m with dilution. At a particular dilution, the value of lambda m reaches the maximum limiting value after which there is no increase in the lambda m. Again, this is important कि there is एक increase भी एक limit तक करेगा. You know, ये increase हो रहा है and बस इसके beyond there is no increase. That means this is your maximum limiting value. इसके beyond increase नहीं कर सकते. तो there is no increase in lambda m and this is known as equivalent conductance at infinite dilution. जो हमने बोला था ना when concentration approaches 0. तो वही है when concentration becomes 0 उस टाइम पे lambda m की value is called lambda not m. Right? So this is the maximum limiting value when concentration approaches 0. Infinity 0 and can be determined by extrapolating the curve. Suppose graph बना लिया आपने and you want to calculate lambda not m from the graph. तो कैसे करेंगे? By extrapolating the graph. इसको extrapolate करके you will जहाँ पर y axis meet करेगा that value will give you lambda not m. And what will be the slope? Slope की value होगी -a. Why -a? See because if you see y is equal to mx plus c होता है. Y is equals to mx plus c. x एक्सेस पे हमारा रूट सी है तो ये क्या हो गया -a इज गोइंग टू बी द स्लोप और ये इंटरसेप्ट हो जाएगा. लैम्डा नॉट एम इज द इंटरसेप्ट. राइट? वही हमने किया है. जो इंटरसेप्ट आ रहा है वो लैम्डा नॉट एम है और यहाँ से जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे दैट इज इक्वल्स टू -a. नाउ कमिंग टू वेरिएशन ऑफ लैम्डा एम विद डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. नाउ अभी तक हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स का किया. क्या था स्ट्रॉन्ग में? देयर इज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन लैम्डा नॉट एम. उसका स्ट्रेट ग्राफ आ रहा था. अब वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी इंक्रीज ही होगा लैम्डा नॉट एम विद द इंक्रीज इन डाइल्यूशन. बट यू सी व्हाट इज द डिफरेंस इन दैट? यू नो द डिक्रीज जो होगा जो इंक्रीज होगा दैट इज गोइंग टू बी स्टीप. सी दिस इज अ ग्राफ एकदम से बढ़ गया ऊपर. यू नो एकदम से राइज हो रहा है. सी so the increase in lambda naught m with dilution is steep और उसमें strong electrolytes के लिए it was gradual. Now see there is a steep increase in the value of lambda m with dilution for weak electrolytes because they do not dissociate completely in solution.
Because increases t, it never reaches the maximum limiting value, and the curve cannot be extrapolated to meet the y-axis so that lambda naught m can be calculated. You see, इसमें if ये तो parallel हो गए यहाँ graph, तो it will never meet your y-axis. Then you cannot calculate lambda naught m from the graph, जो हम strong electrolytes के लिए calculate कर सकते हैं. For example, for acetic acid, lambda naught m value for weak electrolytes can be found indirectly by the application of a law, that is Colruy's law of independent migration of ion. Again, इसका what is the utility of this law? वो weak electrolytes के लिए होता है जिनके लिए हम graphically lambda naught m calculate नहीं कर सकते. We will use indirect method. Using this law, we can calculate lambda naught m for the weak electrolytes. Now see, वो क्या कहता है, Colruy's law क्या कहता है? It states that each ion makes a definite contribution to the total equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution, irrespective of the nature of the ions of the electrolyte. See, again you see, it states that each ion makes a definite contribution to the total equivalent conductance of an electrolyte at infinite dilution, irrespective of the nature of the ions. That means कोई भी तुम इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हो, उसका एवरी आयोन, जितने भी आयोन्स उसमें प्रेजेंट हैं, वो अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे, एंड टोटल रिजल्ट जो होगा उन दोनों का नेट रिजल्ट आएगा. दोनों आयोन्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जो होगा दैट इज गोइंग टू बी द टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन. ना ये तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हो गया. नाउ सी, फॉर एग्जाम्पल यू हैव कोई भी तुम्हारे पास है NaCl है सपोज, नो NaCl, तो लैम्डा नॉट ऑफ NaCl क्या होगा? लैम्डा नॉट ऑफ Na प्लस लैम्डा नॉट ऑफ Cl माइनस. अकॉर्डिंग टू Colruy's लॉ, एवरी आयोन कॉन्ट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स टोटल लैम्डा नॉट एम वैल्यू, राइट. अब कहाँ यूज़ करते हैं हम Colruy's लॉ को? एप्लीकेशन टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स which cannot be determined otherwise. जैसे अभी हमने बोला ना, ग्राफिकली हम लैम्डा नॉट एम नहीं निकाल सकते फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, तो फॉर दैट Colruy's law is a very good option to determine lambda naught for acetic acid. See, very very important. This question had come 3-4 साल पहले आया था बोर्ड में for 3 marks, and कोई ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है. इट इज़ वेरी सिंपल, जस्ट सिंपल प्लस एंड माइनस. सो इसमें क्या है, लैम्डा नॉट KCl दिया होगा, वैल्यू इज गिवन टू यू. लैम्डा नॉट पोटेशियम एसिटेट दिया होगा, लैम्डा नॉट HCl दिया होगा, एंड तुम्हें निकालना है लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड. यू हैव टू कैलकुलेट वीक इलेक्ट्रोलाइट. तो अब इन सब की वैल्यू तीनों को ये रखिए. हम इन तीनों को ब्रेक डाउन करते हैं अकॉर्डिंग टू Colruy's लॉ. लैम्डा नॉट KCl इज इक्वल टू लैम्डा नॉट K प्लस लैम्डा नॉट Cl माइनस. सिमिलरली पोटेशियम और एसिटेट हो जाएगा, H प्लस एंड Cl माइनस हो जाएगा. और ये निकालने के लिए भी इसको तोड़ेंगे हम, H प्लस प्लस एसिटेट आयोन. नाउ ये निकालने के लिए यू हैव टू सी सर्च कि H प्लस कहाँ पर है और एसिटेट आयोन कहाँ है. H प्लस तो हमारा लास्ट इक्वेशन है. इफ़ यू सी, दिस इज 1 इक्वेशन, दिस इज नंबर 2 एंड दिस इज नंबर 3 इक्वेशन. H प्लस जो है दैट कम्स इन 3rd इक्वेशन, और एसिटेट जो है वो 2nd इक्वेशन है. तो एडिंग 2 and 3 को हम ऐड कर लेते हैं. इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, तो दिस वी डोंट रिक्वायर. तो उसमें से अगर हम फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएंगे. K प्लस एंड Cl माइनस कैंसिल हो गए, एंड यू आर लेफ्ट ओवर ओनली विद H प्लस एंड Cl माइनस. जब ये सब हम करेंगे तो वी विल सिमिलरली फॉलो द स्टेप फॉर द वैल्यूज ऑल्सो. व्हेन वी आर एडिंग दीज 2 इक्वेशंस, तो इनका वैल्यू भी साथ में ऐड करना है. और जब फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू भी सब्ट्रैक्ट करनी है. अब सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू आएगी दैट इज द वैल्यू ऑफ योर एसिड, लैम्डा नॉट ऑफ एसिटिक एसिड, राइट. Very easy calculation. Another important application of Colruy's law is to calculate the degree of dissociation, alpha. If lambda naught m is known, the lambda m at a particular concentration can be calculated. Formula is lambda m is equal to alpha is equal to lambda m upon lambda naught m. अब इसमें क्या होगा, सी लैम्डा नॉट m तो तुमने निकाल लिया और अल्फा तुम्हें निकालना है. तो लैम्डा m हम उससे निकाल सकते हैं, या तो ग्राफिकली दिया रखा होगा एक Colruy's लॉ से यूज़ करके, बोथ ऑफ द वैल्यू यू विल बी गिवन, उसमें से यू कैन कैलकुलेट अल्फा. सिमिलरली अल्फा से यू कैन कैलकुलेट Ka, जो हमने सोल्यूशन चैप्टर में किया था. सेम फॉर्मूला, डिसोसिएशन कांस्टेंट या एसोसिएशन कांस्टेंट,
is equals to C alpha square upon 1 minus alpha, and alpha is what? Degree of dissociation. तो उसमें अल्फा की वैल्यू डाल देंगे, लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा, इससे सॉल्व करने के बाद यू गेट सी एल लैम्डा एम स्क्वायर अपॉन लैम्डा नॉट एम माइनस लैम्डा. ठीक है, स्ट्रेट अवे या तो इसमें डाल दो या वहाँ से निकाल दो, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग. नाउ coming to types of cell, in the starting of the chapter we did electrochemical cells, no? And there are two types of cell, electrochemical cells and electrolytic cells. Now what is the difference between them? Electrochemical cell, it is a device which converts chemical energy into electrical energy, right? ये important है. electrochemical में chemical energy is getting converted to electrical एनर्जी, राइट? और इसमें उल्टा होता है. इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होता है? इट इज़ अ डिवाइस विच ऑन पासेज ऑफ करेंट कॉजेज केमिकल रिएक्शन टू अकर, राइट? इसमें करंट पास करेंगे और उसमें केमिकल रिएक्शन हो रहा है, और कौन से हो रहे हैं? रिडॉक्स रिएक्शन हो रहे हैं, राइट? विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, उल्टा. ठीक है, कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी. नाउ यू सी the redox reactions taking place are spontaneous, naturally spontaneous होंगे तभी तो होंगे वो. लेकिन यहाँ पर क्या है इलेक्ट्रोलिटिक में? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आर ऑल्सो मेड टू अकर बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट. तो उनको भी हम ज़बरदस्ती वी कैन मेक देम अकर बाय पासिंग करंट. एनोड इज गिवन नेगेटिव साइन, एनोड इज गिवन पॉजिटिव साइन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस, यू नो, क्योंकि एनोड यहाँ नेगेटिव है जबकि वहाँ पर एनोड पॉजिटिव है. तो दिस इज वन पॉइंट टू रिमेंबर ऑलवेज. इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ सेल्स इन विच एन इलेक्ट्रोड इज डिप्ड इन द ईच हाफ सेल अलॉन्ग विद द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन. लेकिन यहाँ पर क्या है? इसमें इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल containing an electrolyte in which both the electrodes are dipped together. ठीक है, एक ही सेल में दोनों इलेक्ट्रोड डाल देते हैं. इसमें दो अलग अलग सेल्स होते हैं और उसमें दोनों अलग अलग इलेक्ट्रोड, जैसे डैनियल सेल और लेक्लांचे सेल जो डिड इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. अगेन सॉल्ट ब्रिज हैज टू बी यूज्ड. व्हाई? टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू. लेकिन यहाँ पर नो सॉल्ट ब्रिज इज रिक्वायर्ड. व्हाई? क्योंकि वो दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही सोल्यूशन में डिप्ड है, तो देयर इज नो नीड फॉर द सॉल्ट ब्रिज यहाँ. लेकिन यहाँ पर क्योंकि टू अलग अलग कंटेनर्स है तुम्हारे पास, जो इलेक्ट्रोड्स हैं, दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर, तो कॉन्टैक्ट बनाने के लिए सॉल्ट ब्रिज इज यूज, इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए. एग्जाम्पल डैनियल सेल, लेक्लांचे सेल, वोल्टाइक सेल, जो भी है एक ही बात है. एन एग्जाम्पल इज द सेल यूज फॉर रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स एंड इलेक्ट्रोप्लेटिंग. 10th में भी करे होंगे ना, कॉपर की रिफाइनिंग में, एल्यूमिनियम की रिफाइनिंग में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में जो यूज़ करते हैं वो सब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स होते हैं. नाउ कमिंग टू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, तो हमने सब डिटेल में कर चुके हैं, उसमें नर्व्स इक्वेशन एंड ऑल. नाउ वी विल डू इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स. अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स में अगर हम देखें, टू कॉपर स्ट्रिप्स डिप्ड, जो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में हम यूज़ करते हैं, वी टेक टू कॉपर स्ट्रिप्स डिप्ड इन aqueous solution of copper sulfate. Now what are the reactions taking place at cathode and anode? कैथोड पे क्या होगा? रिडक्शन. रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो कॉपर 2+ के साथ +2 इलेक्ट्रॉन करा के इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो बन जाएगा कॉपर सॉलिड. और एनोड पे क्या होगा? उल्टा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो उसमें कॉपर 2+ राइट में लिखेंगे, +2 इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स लॉस हो रहा है, तो कॉपर गोइंग टू कॉपर 2+. नाउ यू सी दिस इज योर इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग प्रोसेस. एनोड है, कैथोड है, पॉजिटिव साइन, नेगेटिव साइन, बैटरी से अटैच किया एंड एवरीथिंग. दिस इज एनोड मड. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? पहले प्योर कॉपर जो है वो निकल के इम्प्योर रॉड में से प्योर कॉपर निकल के सोल्यूशन में जाएगा, फिर सोल्यूशन से वो जाके उधर कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा. दिस इज एनोड. इनिशियली एनोड इज व्हाट? थिकर. दिस एनोड शुड बी थिकर रॉड एंड दिस इज प्योर कॉपर रॉड जो पतली होती है, थिन. ठीक है, अब जब व्हेन यू पास करंट थ्रू इट व्हाट विल हैपन? यहाँ से कॉपर आयंस निकल के सोल्यूशन में आ जाएंगे, कॉपर 2+ प्योर, and then this copper will deposit on the cathode. Later on ये पतला हो जाएगा और ये मोटा हो जाएगा, प्योर कॉपर will deposit over here. तो दिस इज एंड जो इम्प्योरिटीज हैं वो नीचे एनोड मड की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगी बिलो एनोड. एनोड मड बोलते हैं, राइट? ऐसे ही एल्यूमिनियम के लिए कर सकते हैं एंड सो. नाउ कमिंग टू
क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, दैट मीन्स कितना करंट पास करने से कितना अमाउंट ऑफ मेटल डिपॉजिट होगा कैथोड पे. That is governed by Faraday's laws of electrolysis. There are two laws. First law state करता है the amount of chemical reaction that occurs at any electrode during the electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte. That means कितना amount deposit हो रहा है that will depend upon the quantity of electricity. कितनी current तुम pass कर रहे हो. Q is equals to IT. ये तो सभी को मालूम है फॉर्मूला, फिजिक्स में करा होगा. एंड सेकेंड लो क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिबरेटेड बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पासिंग थ्रू द इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन आर प्रोपोर्शनल टू देयर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट वेट्स. दैट मीन्स Q इज इक्वल टू NF. यहाँ पर Q क्या है, चार्ज, N इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड F इज फैराडे. राइट. अब फैराडे की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, यू नो. What is Faraday? Basically, Faraday is charge on 1 mole electron is called Faraday. 1 mole of electron पे कितना चार्ज होता है. अब वो कैसे निकालेंगे हम, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे चार्ज को. एवोगैड्रो नंबर इज व्हाट, 6.0233 इंटू 10⁻23 इंटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन. तो 1.6 इंटू 10⁻−90 and that comes out to be 96500 coulombs. So you need not calculate every time the value of Faraday. तो आप याद कर लें कि इसकी वैल्यू 96500 कूलम ही होगी. राइट. So this quantity is called Faraday constant F and हमेशा यही वैल्यू आप लेंगे for numerical purpose.